Good evening, everyone. Just wait for 2 minutes. We are about to start.
Good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. On behalf of Arambha Yoga Institute, Borivali, Mumbai, this is Ranjana Gupta welcoming you all to a yoga workshop on weight management. Here at Arambha Yoga, we work to enlighten the world, especially the young aspirants who come to us. We give them quality education, training, and guidance in yoga teaching profession. We introduce them to the real essence of yoga and benefits of applying yogic practices to the lifestyle, which improves the balance of life as an individual and thus leads to a better family, a better society, and finally a better world. So, keeping this in mind, we have organized this 6 days workshop on weight management because if we can manage our weight in a proper way, then we can manage our life in a proper way. So, the central idea behind this workshop is प्रेम और सद्भाव हृदय में निरंतर रखिए। प्रेम और सद्भाव हृदय में निरंतर रखिए। अपने और पराये में कभी ना कोई अंतर रखिए। मिलेंगे आपके मन को खुशियां अपरंपार। मिलेंगे आपके मन को खुशियां अपरंपार। बस जिंदगी में सेवा भाव का मंत्र रखिए। So, to conduct this workshop, we have a very talented and committed yoga teacher between us. She is Mrs. Marvi Khatwani. Let me introduce her. Marvi has completed her 500 hours teachers training course from a well-known yoga institute, that is Kaivalya Dham, Mumbai. She has also completed a prenatal, pregnancy and postnatal teachers training course with our institute, that is Arambha Yoga Institute, Mumbai. Presently, Marvi is pursuing her higher studies in yoga as a yoga teacher's course with Yoga Certification Board, that is under Ayush Ministry of India. This workshop is being taken by her as a contribution of services towards the society. She is conducting this class from USA. Can you believe this? This is all because of the technology. So thanks to the technology and the new world. Once again, I welcome you all here on behalf of our respected director, Madam, Professor Sushma Maurya. I really thank her for giving us this opportunity to serve the mankind. So we will start the session with a prayer. Will you please follow me? We will sit comfortably. We'll keep our back erect. Close the eyes. Join your hands. Remove all the tensions from your face. Relax your face completely. Maintain this peace and harmony and start following me. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinam Vaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Make them warm. Put your palms on your eyes. Gently remove your hands from your face. Now, I invite Marvi Madam to take you through this workshop. I wish you all a very happy and healthy yoga journey. So stay fit, stay safe, and stay healthy. Thank you. Marvi ma'am. Hi, everyone. All right, so let's get started. And thank you so much, Ranjana ji, for that beautiful introduction. I will not waste any time. We'll get right into
All right. We'll get right into the instructions, right into our messaging. Before, yes, let us keep our cameras on if possible. Okay. So starting tomorrow, it is mandatory to keep cameras on the program for everyone's security and safety. Okay. All right. Okay, let's get right into it. I'll begin with screen. Start broadcast. Okay. Ranjana ji, you can see the screen? Yes, Marvi. And audio, 1 second. Audio is clear? Yes, Marvi, everything is clear. Okay, thank you, Ranjana ji. Let's continue. So yes, we are all here for our weight management program, and let's see, just some protocols I wanted to list. Let's ensure that the Zoom window, all your names are listed, the person participating, the name of the person on the window is also that, helps in making addressing each other easier. Also, it is mandatory to keep your video on starting tomorrow. Please ensure that video is kept on, and of course, Abhi, also if it's possible right now, please turn on your videos. Okay, audio meet when we'll be doing during yoga practice sessions, and of course, at any point in time, please unmute to ask any questions. All right, we need a gap of at least 2 hours between your meals and asana practice. Please wear loose, comfortable clothing and be ready with yoga mat, blocks, pillows, belt or scarves, or whatever is available to you. Let's go through today's agenda, what we'll be covering today. Today we have a little theory session. So on day 1 and practical session, and from tomorrow we'll just have a practical sessions from day 2 to day 6. All right, and if any Q&As. So before we get started with our presentation, let's get to know each other a little bit. Yeah. All right. हाँ, बस थोड़ा सा जानते हैं एक दूसरे के बारे में. Just अगर किसका योगा एक्सपीरियंस है, because we are also here to learn from each other, थोड़ा बताएं. Or also let me know which language you're comfortable in, English, Hindi, whatever is comfortable, and I'll ensure that I do a mix of both to conduct the workshop. All right. Okay. And all right, and let us make this as interactive as possible. बिना डरे बात करते हैं, because Zoom पर ही है, ऐसे शायद जैसे आप समझ लीजिए आप घर पर ही हैं, तो बिल्कुल कंफर्टेबली बात करें. प्रणीति जी, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, स्माइल करते रहें. ऑल राइट, कुछ एनी स्पेसिफिकेशन कि आई मेक श्योर हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूं. कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन क्वेश्चन हो, प्लीज पूछ लीजिए. यहाँ तो कंफर्टेबल नहीं है अनम्यूट करके पूछना, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा. ऑल राइट, तो अभी आप आए हैं यहाँ पर, तो ये आपका कमिटमेंट है 6 दिन मेरे साथ रहना, नहीं तो मुझे बड़ा अकेले लगेगा. कमिटमेंट कर दी है तो 6 दिन अभी साथ रहना है. एंड वी विल सी, वील लर्न फ्रॉम ईच अदर, साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो होंगे. एंड मेरे पास लिस्ट है कि किन लोगों को
जिनको भी कुछ हेल्थ इशू या चैलेंजेस हैं, जब वरी मत करिएगा, जब मैं आसन प्रैक्टिस कराऊंगी वो सब एड्रेस किया जाएगा। तो जिनको भी कुछ इश्यूज हैं उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मैं वो पोस्चर में दे दूंगी। ओके, ऑल राइट। तो आई टेक इट कि कोई क्वेश्चंस नहीं, तो आगे चलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद आवर प्रेजेंटेशन। मैम, हाँ हेलो। हाँ, मुझे वेट जो है वो गेन करना है। ये ओके, सही? हाँ। हाँ। आप बहुत लक में प्रणीति जी, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। तो साथ में मिलके करेंगे वेट गेन, डेफिनेटली वो भी एड्रेस करेंगे प्रणीति जी, सब हाँ, कुछ है ठीक है। प्रेजेंटेशन में। ओके, ऑलराइट, किसी और कोई क्वेश्चंस? शुड वी मूव ऑन विद आवर प्रेजेंटेशन? तो आज थोड़ा थियरी है, ये थोड़े टॉपिक्स है ना जानना बहुत जरूरी है। आई नो ऐसे थियरी सुन के लगेगा कि काफी बोरिंग होगा, बट आई हैव ट्राई टू मेक इट एज फन एज पॉसिबल। थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं अपने शरीर के बारे में, एंड देन द योगा जर्नी प्रैक्टिस आसन उतना डीपर और एंजॉयबल हो जाता है। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? कोई भी पॉइंट इन टाइम पे प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके मुझे रोक दीजिएगा एंड वी विल एड्रेस दैट। लेट्स प्रोसीड। Okay, so we went through our agenda. ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था, कुछ कुछ जो भी चैलेंजेस हैं वो एड्रेस करते हैं। ओके, अगर कुछ भी सर्जरी या किसी का भी ऑपरेशन किया हुआ हो जिन्होंने ज्वाइन किया है लास्ट 6 मंथ्स में, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बैठ के व्यू करें सेशन को, प्रैक्टिसेस ना करें, आसन प्रैक्टिसेस ना करें। जिनको बैक पेन और बैक इश्यूज हैं अपने पेस पे कीजिएगा, रेस्ट ले लेके कर सकते हैं कि अगर हम दूसरे आसन में चले गए, आप चाहें तो रेस्ट करें कुछ और देर पहले आसन में, वही आसन प्रैक्टिस करें जो आपको लगता है कंफर्टेबल है। नहीं तो एक ऑप्शन आप बैठ के भी सेशन व्यू कर सकते हैं। जिनको हाई बीपी है वो अपने पेस और कंफर्ट पे करेंगे। अगर प्रैक्टिस डायनामिक भी हो जाता है या इंटेंस हो जाता है, बिल्कुल अपनी पेस पे धीमे से करेंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का इश्यू है, अवॉइड अप एंड डाउन ऑफ द नेक एंड गो एट योर ओन पेस। ऊपर नीचे करने में कहीं गले में पिंच होता है तो प्लीज वो आसन ना करें। ऑल राइट, जैसे सेज पतंजलि कहते हैं यथाशक्ति, एज पर कैपेसिटी, प्लीज लिसन टू योर बॉडी। अपनी कैपेसिटी से करेंगे। ओके, एंड गिव योरसेल्फ एंड द प्रैक्टिस इनफ टाइम। दोनों प्रैक्टिसेस, डायनामिक प्रैक्टिसेस सब रहेगा, बट क्योंकि आज जैसे हम कुछ 15-20 मिनट या 30 मिनट्स आसन करेंगे, या शायद फिर कल हमारा 45 मिनट्स हो, लेकिन अभी जैसे हमने अगर आज आधे घंटे प्रैक्टिस किया, कल आप प्लीज मैसेज ना करना बोलते हुए कि मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है। ओके, दैट्स अ बैड जोक, बट यार गिव इट टाइम। हाँ, रिजल्ट्स देखने को टाइम दीजिए दोनों को, प्रैक्टिस को, ठीक है? Okay, so tomorrow slight pain and soreness, do not worry, it will go away. तो अगर आज बहुत दिन बाद आप प्रैक्टिस रिज्यूम कर रहे हैं या बहुत दिन बाद कुछ बॉडी मूवमेंट या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कल बॉडी में थोड़ा सा सोरनेस या स्लाइट पेन हो। बिल्कुल वरी मत कीजिएगा, 1-2 दिन दीजिएगा एंड यू विल सी वो पेन प्रैक्टिस के साथ रिसाइड होते जाता है। Okay, let's move ahead. Let's look at our body, right? Health and body. ये मैंने योग चूड़ामणि से शिव का कोट लिया है। ऑल राइट, तो ये कोट क्या कह रहा है, इनका श्लोका क्या कह रहा है वो देखते हैं। ओके, इसका ट्रांसलेशन है जो शिव जी कह रहे हैं कि टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी इज योर फर्स्ट धर्मा, राइट? आप क्या कोई शेयर करना चाहेगा कि वो ऐसे क्यों कह रहे हैं?
Anyone? Why is taking care of our body our first dharma? Anyone? Because this is where we live throughout our life. Perfect. Yes. Perfect. और कोई ऐड करना चाहेगा? All right. ठीक है, पर स्मिता जी परफेक्ट आंसर, पर आप मेरे लिए एक और क्वेश्चन आंसर करें कि हम क्या कोई भी हमें इंक्लूडिंग हम ऐसे बिहेव करते हैं कि हमारे पास एक ही शरीर है और ये शरीर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते? No, we take it for granted. और हम ये बात जानते हैं, राइट? बट so how do we change that, right? वो कैसे चेंज करें, आइए आगे देखते हैं. Okay, taking care of your body is your first dharma. Why is Shivji saying that? Because हम सब कुछ, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, आपकी इस जिंदगी में आपको जो भी पसंद है, आप जो भी करना चाहते हो, वो हम अपने शरीर के थ्रू ही पॉसिबल है करना, राइट? Only in this body can we experience the physical realm, right? So like I said, all experiences happen only through the body. If you don't know your own body, how will you get any success? ये भी उस योग चिड़ामणि में कहा गया है शिव जी से. वो कहते हैं जब तुम अपने शरीर को ही नहीं समझते तो तुम्हें सक्सेस कहीं भी कैसे हासिल हो सकेगी. He definitely is referring to self salvation, but it is also true. इस जिंदगी में भी सच है कि हम अपने शरीर से जितना कनेक्टेड रहें उतनी ज्यादा सक्सेस मिलती है लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, करियर में हो. तो उस पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, पार्वती और शिव जी की स्टोरी. तो पार्वती बहुत तप करती थी शिव जी के लिए, क्योंकि उन्हें शिव जी से बेहद प्यार हो गया था और वो चाहते थे और शिव जी को चाहते थे और उनके लिए तप करते थे. पर वो उनके तप के चक्कर में, उनके पीछे भागने के चक्कर में क्या होता था, उनकी तबीयत खराब होते रहती थी, राइट? तो शिव जी ने उनसे कहा कि जब तक कि तुम सक्षम नहीं हो जाते अपने शरीर में, अपने शरीर को समझ नहीं लेते और ये नहीं समझते कि तुम्हारा पहला धर्म अपने शरीर की तरफ है, तब तक मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकूंगा, राइट? विच इज मेटाफोरिकल कि हम इस जिंदगी में सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, बट सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी है, अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है, अपने आप की तरफ ध्यान देना है और हर एरिया में हमें सक्सेस प्राप्त होगी. ऑलराइट, मैं जानती हूँ कुछ लोगों के लिए ये बहुत सरप्राइजिंग रहेगा कि योग क्लास के लिए आए थे, थोड़ा सा प्रवचन हो गया है, बट कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं. ऑलराइट, ओके, लेट अस सी व्हाट इज योगा. ओके, सो योगा में पतंजलि जी ने हमें यमास, नियमास, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, शुद्धि, क्रिया. शायद ऐसे लगता होगा कि योगा में सिर्फ आसन है, बट इधर हमें यमास, नियमास सिखाए गए हैं. योगा में प्राणायाम भी आता है, मेडिटेशन भी आता है और शुद्धि क्रिया. हम ये भी देखेंगे कि वमन और जल नीति की शुद्धि क्रिया क्या है. और वमन जल नीति, वमन शुद्धि क्रिया वेट लॉस में बहुत इफेक्टिव क्रिया है. हम आगे देखेंगे, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी देखेंगे. और पहले हम आगे बढ़ने से पहले यमा नियमा देखते हैं कि क्या है. ऑलराइट, ऑलराइट, देखिए यमा जो हमें सोशली गाइड करेंगे और नियमा. ऑलराइट, यमा में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह. तो ब्रह्मचर्य सिर्फ यहाँ सिलिबसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमें ब्रह्मा के रास्ते पर चलना है, राइट? सीखना है, ब्रह्मा के रास्ते पर चलना है, उनके जैसे क्वालिटीज ग्रहण करनी है. तो वो ब्रह्मचर्य की बात हो रही है यहाँ. अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस, होर्डिंग ना करें. ये अपरिग्रह ना, दोनों में ये सारे पॉइंट्स दोनों फिजिकल, मटेरियल, इमोशनल हर लेवल पर लागू होते हैं. जैसे कि नॉन पॉसेसिवनेस, अपरिग्रह, हम मेंटली भी होर्ड ना करें, फिजिकली भी, फिजिकल रेल्म में भी होर्ड ना करें चीजें, राइट? लेट अस बी ऑफ द नॉन पॉसेसिव नेचर.
राइट। लेट्स गो टू नियमास। ये नियमास सेल्फ गवर्नेंस के लिए है। तो उसमें शौच मेंटेन करना, शरीर की शुद्धि, और इसी में भी वो शुद्धि क्रियास भी आते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो क्लेanलीनेस, मेंटल फिजिकल क्लेanलीनेस, संतोष, कंटेंट रहे जिंदगी से, तब मतलब ऑस्टेरिटी, हमारी जो प्रैक्टिस है योग पाथ पर या जिंदगी में जो हमारा तप है जो हम करते हैं कुछ पाने के लिए। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या होगा, जैसे जो आज हम यहाँ सीख रहे हैं, चाहे वो कुछ आसन हो या कुछ हो, उस बारे में जाके खुद रिफ्लेक्ट करें, खुद प्रैक्टिस करें, पर्सनली देखें कि क्या हो रहा है, कि जो कहा गया है देखें कि योग में सच में क्या ऐसी बात है। और ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड। मुझे ईश्वर प्रणिधान एक बहुत की अच्छी टैक्टिक लगती है जब चीजें बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हैं, कभी कभार जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है या समझ नहीं आता अब आगे क्या होगा। सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर प्रणिधान से सरेंडर कर दीजिए, बोलें जो भी हायर पावर है या जिस किसी हायर पावर को आप मानते हैं कि बस मेरी तरफ से सारा काम हो गया है, अब सब कुछ वो हायर पावर के भरोसे। तो इससे क्या होता है, उस वक्त के लिए थोड़ा मेंटली थोड़ा बेटर मैनेज कर सकते हैं इमोशंस को, राइट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ओके, ये वमन धोती जल नीति है। ऑलराइट, बिफोर आई मूव ऑन टू वमन धोती जल नीति, क्विकली जस्ट वांटेड टू आस्क anyone with any questions, any stories to share? क्या कोई कुछ बोल कहना चाहेगा, और else we'll move forward? ठीक है, लग रहा है सब लोग आसन प्रैक्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। वी विल गेट देयर, आई प्रॉमिस यू। आप थोड़ी देर में समझेंगे कि थोड़ा ये बातें जानना क्यों जरूरी है। ओके, तो देखें, ये वमन धोती और जल नीति है। ये प्रैक्टिस सुबह सुबह खाली पेट ही करना होता है, तो इसलिए हम ये साथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि अब इवनिंग टाइम है, तो ये साथ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पर ये प्रैक्टिस जान लें, कभी करना चाहें तो प्लीज प्रोफेशनल गाइडेंस के अंडर करें। और अगर आप में से कोई है जो ये प्रैक्टिस करते आ रहा है और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा सबके साथ, तो प्लीज बिल्कुल करें। ऑलराइट, तो ये वमन धोती है। वमन धोती में क्या होता है, हम एक्चुअली एक ल्यूकवार्म वाटर, थोड़ा सॉल्ट डाल के 1-2 लीटर जल पानी पीते हैं। एक तरीका होता है बैठने का, उसमें बैठ के पानी पीते हैं और फिर 2 फिंगर्स मुंह में डाल के एंड ऑफ द टंग पे रख के पूरा पानी बाहर निकालते हैं। सो पेट से फिर पूरा पानी बाहर आ जाता है। तो व्हाट डज दिस डू, दिस क्लेंसेस द कंप्लीट फूड कैनाल। तो हम जो भी खाते हैं करते हैं, तो फूड कैनाल और पूरा स्टमक का क्लेंजिंग हो जाता है। जैसे हम नहा के बाहर निकलते हैं तो कैसा महसूस होता है, बस वमन धोती के बाद ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर ऑर्गन्स ने नहा लिया हो। और सेम फिर जल नीति की जाती है वमन धोती के बाद। जल नीति के लिए जैसे आप ये पिक्चर में देख सक रहे हैं, एक नॉस्ट्रिल से पानी डाला जाता है जो दूसरे नॉस्ट्रिल से निकलता है। तो ये नेति, वो जो पूरा नेजल पैसेज को क्लीन करते निकलता है ये। तो आप देखेंगे ये वमन धोती जल नीति में क्या होता है, बहुत सारा म्यूकस बाहर निकलता है, राइट। ये इतने हजारों साल पुरानी प्रैक्टिस जो अभी साइंस हमें बताती है कि जितना शरीर में म्यूकस ज्यादा बढ़ता है उतना इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, बाकी सारी बीमारियां और परेशानियां बढ़ती हैं, राइट। तो ये पूरा उसे क्लेंजिंग करने का क्लेंजिंग करने की प्रैक्टिसेस हैं। क्या किसी को कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अपना? यस मैम, मैं अनुपमा। यस अनुपमा, प्लीज। हाँ मैम, ये जो जल नीति है ये मैं कर रही हूँ। रंजना इज माय फ्रेंड। रंजना ने ही मुझे ये सब बताया पहले और मैंने किया तो मुझे काफी रिलीफ है और बहुत चेंजेस आए हैं उसके बाद मुझे। ओह वाओ, या अनुपमा जी बहुत हेल्प होता है। क्या मेंटल क्लैरिटी क्या महसूस होता है? एक तो जैसे मुझे साइनस का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, उससे मुझे बहुत रिलीफ होता है और एक जो माइंड, नोज और एक एवरीथिंग जैसे क्लीन अप हो गया अंदर, ऐसा फील होता है, लाइट हो जाते हैं हम एकदम से। ओके, वाह अनुपमा जी। अनुपमा जी सेम, मुझे भी साइनस का इशू था। जब से मैंने ये प्रैक्टिस चालू किया ना, बहुत 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 कम हो गया है। यस राइट यस, राइट, थैंक यू सो मच अनुपमा जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स, कोई और शेयर करना चाहेगा? और we'll continue. All right.
Ma'am, in Jal Niti, do we inhale the water or? नहीं नहीं स्मिता जी, तो उसमें क्या करना पड़ता है ना, आप मुंह खुला रखते हैं, तो आप सांस है ना मुंह से ले रहे हैं, क्योंकि अभी नाक से सांस नहीं लेंगे, नेजल पैसेज का क्लीनिंग हो रहा है, तो सांस मुंह से लिया जाता है और इनहेल नहीं करते हैं वो। तो आप सांस मुंह से ले रहे हैं पर वो वहां से पानी चले जाएगा। Automatically it will happen. यस करेक्ट, या ऑटोमेटिकली जाएगा, यस। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, प्लीज एक क्वालिफाइड या ये प्रैक्टिसेस प्रॉपर टीचर्स के साथ सीखें। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक बार आपने सीख लिया है, कंफर्टेबल है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू योगा एंड वेट मैनेजमेंट कि कैसे। ओके, क्या हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं योग करने से, और ये मसल स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स इंक्रीज होता है, मेंटल पीस मिलता है, सारे सिस्टम्स, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कह लीजिए। हम जब आसन करेंगे, हर पॉइंट पे मैं आपको डायरेक्ट करूंगी, इनमें बहुत प्रैक्टिसेस में है ना अपने चेस्ट को एकदम ओपन करते हैं। आप देखेंगे हम सब साथ, स्पेशली वुमेन गर्ल्स के साथ ग्रो होते वक्त हमें हमेशा कहा जाता है सही से बैठें, सही से उठें, तो उसमें कहीं कहीं क्या हो जाता है ना, हम अपना शोल्डर, अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और पता है ये टेस्ट भी, ये एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं कि जब एक चेयर पे, चाहे सेम एक कह लीजिए एक बेंच पर, चाहे सेम बॉडी टाइप, वेट, हाइट के एक मेन और वुमेन बैठे हों, मेन ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे, ऐसे छाती तान के पैर खोल के बैठते हैं, जबकि वुमेन अपने आप को एक छोटा सा बना लेते हैं। तो वो उसमें क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं पूरी तरह सांस लेना इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसमें कितने सारे प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम छाती तान के प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, सारे स्टमक, सारे ऑर्गन्स को मसाजेस अच्छा मिलता है, डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, ऑफ कोर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। और ये आप रेगुलर प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल नोटिस करेंगे 100%। ऑलराइट, एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी, सेल्फ एंड माइंड हो जाता है। कैसे होता है, अभी आप खुद सोचें, चाहे आप आधे घंटे या 1 घंटे के लिए जब भी योग करें, और जो करते भी होंगे वो देखेंगे कि क्योंकि हम अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने शरीर को थोड़ा बेहतर समझने लग जाते हैं। और जैसे डे टू डे लाइफ में बाहर की आवाज से हम अपने शरीर को सुन नहीं पाते हैं, बट जब वो 1 घंटा देते हैं योग करते हुए, शरीर कह रहा है कि नहीं इससे और ज्यादा आगे मत पुश करें, कि नहीं बैठ जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, कि नहीं उठे चले दौड़ते हैं, ये सब चीजें जब सुनने लग जाते हैं हम, तो डे टू डे लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट होता है। एंड ऑफ कोर्स इमोशनल वेलबींग हो जाता है इससे, आप सांस अच्छे से ले रहे हैं, सब कुछ आपके सिस्टम्स अच्छे चल रहे हैं, तो दिमाग, इमोशंस बेहद अच्छे चलते हैं। डेफिनेटली स्पिरिचुअल वेलबींग है मेडिटेशन, ध्यान के थ्रू। और ऑलराइट, तो इससे क्या होता है ना, हम कह तो लेते हैं कि ठीक है ये करो, हम सब जानते हैं क्या करना अच्छा है, क्या करना नहीं अच्छा है, हम जानते हैं एक्सरसाइज करना अच्छा है, राइट, हम जानते हैं, सब जानते हैं क्या राइट हैबिट्स हैं क्या नहीं, पर उन्हें इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये ना ही हमें कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमारी बुरी हैबिट्स, हमें सही हैबिट्स करने में पुश करता है। ऑलराइट, नाउ अभी ये 2 पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑलराइट, तो देखें ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। पहले थोड़ा सा नर्वस सिस्टम देख लेते हैं कि क्या है। एंड दो हमारे जो ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम्स हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। उसमें जब हम सिंपैथेटिक है जो हम फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। ओके, तो अभी देखें एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप इमेजिन करें आप एक फॉरेस्ट के थ्रू जा रहे हैं, बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है, धीमी धीमी दूर कहीं एक रिवर फ्लो हो रही है, उसकी आवाज आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है, राइट, यू आर एंजॉयिंग योर वॉक और जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और कुछ देर आगे जाके सडनली सामने एक शेर दिखता है, राइट।
शेर दिखता है, आप डर जाते हैं, क्या करते हैं कि सोचते हैं अभी टर्न होके भागो। जैसे ही शेर दिखता है क्या होता है कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर, एंड ऑफ कोर्स एट दैट मोमेंट डाइजेशन बिल्कुल बंद हो जाता है, बिकॉज आप एक फाइट और फ्लाइट मोड में हैं, राइट। आप टर्न होते हैं, आप दौड़ने लग जाते हैं। अभी आप अगर शेर से दूर दौड़ रहे हैं, आप मुझे बताएं, आप उस वक्त सोचेंगे कि अरे मुझे प्यास लग रही है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, या मुझे भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, या मुझे बाथरूम जाना था कुछ देर पहले, 2 सेकंड रुक के बाथरूम जाता हूँ, फिर भागता हूँ वापस आके। एनीवन लाइक ऐसा कोई है जो शेर से दूर भागते वक्त ये सब सोचेगा? ओके, आई एम गेसिंग नो। सबके तरफ से मैं आंसर दे देती हूँ, राइट। ओके, सो व्हाट इज दैट? एट दैट टाइम आप फाइट और फ्लाइट मोड में हो, राइट। और इसमें क्या होता है, आप ये रिलेट कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। अगर हम वो डेली स्ट्रेसेस में हैं, राइट, डेली स्ट्रेस में हैं हम, तो आप फाइट और फ्लाइट मोड में हो, तो उसमें क्या हो जाता है, हम ना ही अपने शरीर की ये बात सुन रहे कि प्यास लग रही है, प्यास अभी लग रही है, पानी पियेंगे 2 घंटे बाद, बाथरूम जाना है उठ के जाएंगे आधे 1 घंटे बाद, भूख लग रही है खाएंगे नहीं, 2-3 घंटे बाद खाएंगे। तो इसमें ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे सिस्टम्स को इम्पैक्ट होता होगा। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपको बोले कि अरे भाई भूख लग रही है, अभी उठते हैं खाते हैं, अभी पानी पीते हैं, जो आपका ध्यान रखता है, राइट। जब फाइट और फ्लाइट मोड में स्ट्रेस हो रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक आके बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, शांत रहो। तो हार्ट रेट उसमें मेंटेन रहता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो योग क्या करता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेटेड रखता है, मतलब कि आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक अच्छा बैलेंस लेके आता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बीच। एंड ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि अगर सारे हमारे सिस्टम्स अच्छे चल रहे हैं तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज रहेगा, राइट। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होने से वेट लॉस होता है, राइट। और या आई नो कि अगर आप मुझे ये बात बहुत जरूरी लग रहा है आप बताना, क्योंकि अगर आप वेट पुट ऑन करना चाह रहे हैं तो योग है ना, जहाँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से, कि जो योग करते हैं अगर वो थोड़ा ऐड कर सके कि जो आप चाहते हैं, आपके शरीर को जरूरत है, आपको वो मिलता है। तो देखिए आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करने लगता है ज्यादा, तो आपके शरीर का न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्शन भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो जो वेट गेन करना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सब कुछ आपके शरीर बेटर समझ रहा है कि ठीक है थोड़ा अच्छे से न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करो, अच्छा ग्रोथ करना है बॉडी का, राइट। और नर्वस सिस्टम पे आते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारा सोमैटिक और ऑटोनॉमिक है। सोमैटिक में हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं, हमारे हाथ उठाना, पैर चलाना। और ये ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से कंट्रोल्ड है, जैसे हमारा हार्ट और ये डिटेल्स। ऑलराइट, so we want to keep our parasympathetic activated, we want a good balance between our sympathetic and parasympathetic nervous system, जो हमें योग से मिलता है। ऑलराइट, बिफोर आई गो ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, क्विकली सब एक एक बताएं कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है, शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है कुछ भी काम करने के लिए। फूड से, खाने से। करेक्ट, फूड इज वन। व्हाट एल्स? मैम मेडिटेशन से, सन से। ओ मैं ब्रीथिंग। excellent. Food, water, air, absolutely. Thank you, Aparna. Thank you, Anupama ji. Right. All right. Let us see. Okay. So energy definitely एक फूड से मिलती है, क्योंकि 3-4 दिन नहीं खाएं तो हालत खराब। सांस लेने से, राइट, सांस से मिलती है हमें एनर्जी। सोचें अगर आपकी 1 मिनट सांस रोक दे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ना, तो एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में, शायद बॉडी नहीं रहेगी ना, तो एनर्जी नहीं रहेगी। स्लीप से मिलती है, राइट।
अगर हम नहीं सोए 2 दिन तो क्या कुछ कर सकते हैं? 3-4 दिन नहीं सोए तो कैसे कुछ नहीं कर पाते, माइंड फंक्शन नहीं करता बराबर। एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जैसे कहा आपने, और एक बैलेंस स्टेट और हार्मनी इन सब से मिलता है। ओके, ये अभी जो वेट लॉस करना चाहते हैं और वेट गेन करना चाहते हैं, आपके लिए ना एक पॉइंट कहना था कि हम हमेशा सोचते हैं अच्छा डाइट का क्या, डाइट का क्या, ये कभी नहीं सोचते हैं कि हम सांस कैसे ले रहे हैं, क्या हम सांस सही तरीके से ले रहे हैं क्या। आप देखेंगे कोई भी योगा टीचर या किससे पूछेंगे, प्रैक्टिस में कई बार ऐसे आते हैं क्लाइंट्स जो इनहेल और एक्सहेल ही बराबर नहीं कर रहे हैं। देखें, जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, राइट, क्योंकि हमारे लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं और वो पेट को बाहर पुश आउट करते हैं, तो पेट बाहर आना चाहिए। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। देखें ऐसा हो रहा है क्या? किसी का ऑपोजिट या उल्टा हो रहा है? सांस अंदर ले रहे हैं, पेट बाहर, सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर। किसका भी ऑपोजिट हो रहा है यहाँ तो जरूर बताएं। सांस अंदर, पेट बाहर, सांस छोड़े, पेट अंदर। ओके, राइट वे टू ब्रीथ। और कई बार वो ऑपोजिट कर रहे हैं, या ये हमें सब कुछ सिखाते हैं, राइट। सांस कैसे लेना है, सांस को कैसे कंट्रोल करना है, ये हमें कभी नहीं सिखाया जाता, राइट। एक कड़ी जो हमें जोड़ रही है, या इनको एक कुछ ऐड करना चाहेगा? ओके, ऑल राइट। तो ये बात पर भी ध्यान दीजिए कि सांस पूरे दिन में कैसे ले रहे हैं। एक सेकेंड, आई थिंक कोई अनम्यूट है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो ऑल राइट। हाँ, और एक्सेल था तो ये नॉर्मल अपना डेली के लिए बोला था, तो प्राणायाम या एक्सरसाइज। हाँ, राइट बोल रहा मनीषा। डेली में जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं ना लाइफ में, तो जब सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांस छोड़ रहे हैं ना तो पेट अंदर जाना चाहिए। ओके, नॉर्मल जब भी हम श्वास लेते और एक्सेल करते तभी करना, मतलब होना चाहिए। हाँ मनीषा, एक बार आपका चैट बॉक्स में क्वेश्चन डालेंगे, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, प्लीज डालें, वो एड्रेस करते हैं, जब तक मूव ऑन करते हैं। ओके, सो फूड ब्रेथ, मुझे कहना है कि ये इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नींद बराबर हो रही है क्या, पेट सुबह साफ हो रहा है क्या, ये बातें भी वेट मैनेजमेंट में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ऑल राइट, एंड जैसे कहा मेडिटेशन। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू व्हाई डू वी गेन एक्स्ट्रा वेट। ओके, और ये ही सेम चीज अप्लाई होती है व्हाई डोंट वी गेन वेट पर भी। एक मिनट में खाली मनीषा जी का क्वेश्चन। ओके, मनीषा जी आपने क्वेश्चन शेयर किया है। DNS, ओके, ये अपर्णा जी DNS क्या है? मनीषा जी आप चैट में क्वेश्चन शेयर करें। हाँ अपर्णा जी, DNS एज एन, अपर्णा जी हैं क्या? ओके ओके, deviated nasal septum. All right, got it Priyanka, thank you. All right, so deviated nasal septum में अपर्णा जी ये हम एड्रेस कर सकते हैं, और ये इसमें डॉक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा अपर्णा जी। तो ऑफ कोर्स हाँ, वमन और जल नीति में कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, और जैसे अगर एक्सट्रीम एसिडिटी सिचुएशंस में, पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टाइनल इश्यूज में ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा कि
टीचर के अंडर, गाइडेंस के अंडर करें तो बिफोर इवन दे इवन टीच यू, वो ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, मेक श्योर ये सब उन्हें बताया जाए, ये सब बात की जाए, राइट? बिकॉज आई नो कि कहीं और जब जिनको एक कोई इंटेस्टाइनल इश्यू था और उन्हें वमन या इसके लिए कहा गया था, बट वो उनकी हालत उससे एक्चुअली ज्यादा खराब हो जाती अगर कोई इश्यूज में ये प्रैक्टिस किया जाए। बट इन जनरल हेल्थ, गुड हेल्थ, और ऑफ कोर्स विद अगर इन केसेस में डॉक्टर गाइडेंस के साथ वी कैन डू। Let me see if there's any more questions, then we'll proceed. Okay, जल्दी से weight gain, calorie intake is greater than calorie expensed. तो देखिए हमारे शरीर को है ना, कैलोरी एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, जो जैसे हमने कहा जो खाने से मिल रहा है हमें यूनिट ऑफ एनर्जी कैलोरीज हैं। सो व्हेन वी इनटेक फूड इन, हमारी बॉडी को ना, हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए, डाइजेशन के लिए, सारे फंक्शंस के लिए ना एनर्जी लगता है। सो वी आर ईटिंग दैट अमाउंट ऑफ फूड, तो हमें शरीर को एक मिनिमम कैलोरी इनटेक तो रखना ही है, जैसे हार्ट बीट करे, वी कैन थिंक, माइंड चले, digestion अच्छा हो, so we need that minimum calorie intake, right? And so when the calorie intake is greater than the calories you're spending, तो of course weight gain होता है। And similarly अगर शरीर को समझे 10 कैलोरी की जरूरत है, for example, right, to operate, so for any individual it can range from 2000, 1500, 3000 ऐसे डिपेंडिंग। तो अगर हम, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 10 कैलोरी लें, ओके या सो 10, अगर 10 कैलोरीज की जरूरत है हमें, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हम 10 कैलोरीज ले रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं 20 कैलोरीज, एक्सपेंड खाली 10 होगा, तो जो बाकी 10 है ना वो एज अ फैट सेव हो जाएगा इन द बॉडी। सो इधर हमें ये ध्यान रखना है कि हम जितना एक्सपेंड कर रहे हैं, खा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है, जितना जरूरत है उससे ज्यादा नहीं खा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इनटेक इज नॉट जस्ट फ्रॉम फूड, सो योगिक पर्सपेक्टिव से सारे सेंसेस से, अगर हम खाना जैसे टीवी देखते वक्त खा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, वो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जब जो सुनते हैं वो, एंड मार्कर्स क्या है, आई वुड से कि डेफिनेटली डिच द स्केल, ये अपना वेट देखने का फिनोमेना से कि वेट कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, उससे बेहतर इसमें नापे कि क्या नींद बराबर आ रही है, क्या पेट हर रोज साफ हो रहा है, क्या शरीर में लाइट फील हो रहा है। ओके, सो दैट विल ensure, one second, I'll just, if anyone's mic is unmute, please, I'll actually go ahead and mute. Okay, all right, okay, let's move ahead. Let's go on to food and nutrition. Okay, now quickly why dieting doesn't work. All right, so what happens is when we are dieting and starving ourselves now, तो शरीर को लगता है कि ऐसी डाइट्स हैं जो आपको स्टार्व करती हैं, तो शरीर को लगता है कि आगे खाना नहीं आने वाला, तो वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा तक खाना ना, इट इज गोइंग टू स्टोर एज फैट, बिकॉज अगर आप इरेटिक टाइम्स पे खा रहे हो, जरूरत से एकदम कम खा रहे हो, जितना बॉडीली फंक्शंस है उससे कम खा रहे हो, ये प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो हेयर फॉल, स्किन इश्यूज, ये सब होना चालू हो जाएगा, राइट? सो बी माइंडफुल कि डाइटिंग, एक्सट्रीम डाइट्स बिल्कुल नहीं करनी है। डेफिनेटली जितना हमें शरीर की जरूरत है, एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ समझ के बात करके डॉक्टर्स के साथ कि कितना कंज्यूम करना है उतना करें। एंड या डाइटिंग एक्चुअली, एक्सट्रीम डाइट्स एक्चुअली रिजल्ट इन वेट गेन, और शायद वो 10 दिन 15 दिन के लिए आपको रिजल्ट दिख भी जाए, बट आप अपने आप को बहुत लंबे टाइम तक नहीं स्टाफ करके रख सकोगे, और नहीं करना चाहिए। कुछ महीने, 1-2 महीने बाद आप फिर से वो अपने पहले की तरह खाने लगोगे और उस टाइम वेट डबल ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि जब इनफैक्ट आप डाइट भी कर रहे थे तो बॉडी राइट फैट स्टोर कर रही थी। ओके, हाउ टू ईट, जो कर सकते हैं, ऐसे पैर ऐसे बैठ के, सुखासन में बैठ के जमीन पर खाएं,
खाने के बाद थोड़ा वज्रासन कर सकते हैं 10 मिनट, जो बैठ के जो कंफर्टेबल है वज्रासन करें, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ये व्हेन टू ईट के पॉइंट के लिए नोट करें कि हर दिन सेम टाइम पे खाएं, कोशिश करें। सेम टाइम पे खाने से शरीर रेडी है, शरीर को पता है ओके ठीक है ये टाइम्स पे खाना आएगा, डाइजेशन बेटर होता है, एब्सॉर्प्शन बेटर होता है। ओके, गेनिंग वेट की बात करनी थी कि नोटिस करेंगे जब पोस्ट मैरिज दोनों मेन वुमेन दोनों का वेट गेन होता है या लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण, और स्पेशली बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट नोटिस करते हैं कि वुमेन जब मैरी करके आते हैं तो क्योंकि बच्चों को, घर वालों को खाना देने में उनका खाने का टाइमिंग बहुत इराटिक हो जाता है, कई बार उस चक्कर में उनके मील्स छूट भी जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ओवर टाइम यह बहुत जल्द एक्चुअली वेट गेन हो जाता है। तो अभी सबका ध्यान रखने से पहले अपना ध्यान रखें, राइट? खुद तंदुरुस्त रहेंगे तो घर वालों का भी अच्छे से ध्यान रख सकेंगे। All right, and we will discuss the solutions moving forward with all our practices. Like I said, give yourself time, okay? And ditch the scale, please. अपने scale से अपनी health ना नापें, right? Like we saw that, right? In recent years आप देखेंगे 25-30 years individuals को जो बहुत healthy दिखते हैं, जिनकी बहुत super body है, उन्हें भी heart attacks होते हैं, right? Because fitness or how you look, your weight is not the marker of कि तुम्हारा शरीर कितना तंदुरुस्त है, कितना अच्छा है। All right, now let's come to emotional cleansing. I just wanted to talk about this separately quickly because जो हम एक चीज करते हैं सब कि क्या होता है, हम इमोशनली अगर अपने आप को बंद करे रखे हैं, समझते हैं कि हमारी तकलीफें किसी के साथ नहीं शेयर करनी या ऑल ऑफ दैट, राइट? तो क्या होता है, अपने अंदर इमोशनली टॉक्सिसिटी बिल्ड होती है, राइट? लाइक तो इसे आयुर्वेदा में आम कहते हैं, टॉक्सिसिटी बिल्ड होना। और तो वो जैसे इमोशनल क्लेंजिंग में भी बहुत बहुत काम आता है, राइट? विच वार्ड्स ऑफ बहुत सारे एलिमेंट्स, क्योंकि अगर हम इमोशनली ये सब फील करते हैं तो हमने जैसे सीखा था पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, तो हमेशा हम फिर अंदर स्ट्रेस में रहते हैं बिकॉज हमें हमारे सिस्टम को लगता है कि ये बहुत डर में है, या जैसे हमने बोला था ना वो भाग रहे हैं शेर से, तो अगर हर टाइम वैसा ही महसूस कर रहे हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, डाइजेशन बराबर नहीं होगा जिसके कारण वेट गेन होगा, रेस्पिरेशन बराबर नहीं होगा, तो वो सब चीजें होंगी। ओके, व्हाट आर द चैलेंजेस? अभी देखें ये 6 दिन आपको आना है और आगे भी प्रैक्टिस, कोई भी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें जो कंफर्टेबल है, बट उसमें क्या होता है ना, चैलेंजेस आ सकते हैं, राइट? Challenges can be in any form, like we are overeating. हमें सिखाया गया कि पेट भरने के लिए खाएं, राइट? जब तक ऐसा नहीं हो जाता कि अब हम सो ही जाएंगे तब तक हम खाते रहते हैं, राइट? वैसा नहीं करना है, हमें समझना है कि कितना खाना है हमें, कि इतना लाइटनेस भी फील हो, पेट भी भरा रहे पर लाइटनेस फील हो कि काम कर सके, वो एक्चुअली हमारे सही प्रपोर्शंस हैं खाने के। वो सब, ये सारी प्रैक्टिस जो भी आप सीखे, चाहे 3-4 आसन भी जो सीखें, वो नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए क्या करना है, आप है ना पहले एंटिसिपेट कर लीजिए, अभी लिख दीजिए कि अच्छा मुझे रोज ये करना ही है, 5 मिनट भी निकाल के करेंगे बहुत हेल्प होगा, तो मुझे रोज ये करना है, तो मेरे दिन में कौन से वो 5 मिनट हैं कि मैं कर सकती हूँ ब्रीदिंग प्रैक्टिस या कोई भी एक्सरसाइज, वो रोड ब्लॉक्स पहले ही कर दें। अच्छा ठीक है, बच्चे का ये स्कूल है या ये है या ये है, एंटिसिपेट कर ले रोड ब्लॉक्स, प्रिपेयर फॉर रोड ब्लॉक्स विद सोल्यूशन इन हैंड, जैसे मैंने कहा कि दिन में ये 5 मिनट मिलेंगे। ओके, एंड वेज टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है 5 मिनट तो मिल रहे हैं पर उस 5 मिनट के दौरान क्या कोई आके डिस्टर्ब करेगा, तो इन्फॉर्म करके रख दीजिए कि ठीक है ये 5 मिनट मेरे 5 मिनट हैं, राइट? And especially to all the women out there, place yourself first, start placing yourself first, अपने शरीर की जरूरतों को और अपने आप की जरूरतों को पहले रखना सीखें। ओके, कोई भी प्लीज घर पे जाके सबको मत बोल देना कि आज से सिर्फ मेरी जरूरतें और ये पहले रहेंगी, थोड़ा टाइम दीजिएगा, धीरे धीरे करके घुसाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा ओके, डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, डिटरमाइंड रहें, कंटिन्यू रहें, पाथ पे जुड़े रहें,
ओके, लेट्स सी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन जैसे शायद बहुत के लिए बोरिंग भी हो सकता है, ओवरवेलमिंग भी हो सकता है। We'll go one step at a time. Okay, we'll make it a habit. मैंने जैसे कहा हैबिट बनाने का एम करेंगे, नहीं तो वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, रोज नहीं करेंगे। ओके, और हैबिट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? गेट हेल्प, अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो आप कंटिन्यू कर सकेंगे। इंस्ट्रक्टर से हेल्प लीजिए, टीचर्स से हेल्प लीजिए, पेरेंट्स, फैमिली, किसी को ऐसे पुलिस जैसे रखिए जो आपके साथ चेक करता है रोज आप कर रहे हैं या नहीं। ऑफ कोर्स बी ऑथेंटिक टू योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड। सबसे पहले अपने साथ अपने आप को बोलें कि ध्यान रख रहे हैं क्या शरीर का। Speak, express, share, or toxicity builds, as we discussed earlier. More importantly, smile, laugh, be in joy and acceptance, and be happy. Okay, let's continue to work towards a sharp intellect, a warm heart, and a strong body, a cool mind, and a soft stomach, and warm feet. तो एक शार्प इंटेलेक्ट, एक वार्म हार्ट और एक तंदुरुस्त शरीर की तरफ काम करेंगे हम, और एंड एक कूल माइंड, एक नरम पेट और वार्म फीट की तरफ, राइट? क्योंकि ऐसे कहते हैं कि अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, जैसे कि फीट अगर ठंडी हो जाए और स्टमक अगर हार्ड हो और माइंड गर्म हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट? तो ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। So these were some pointers that I wanted to share. Yes. So let us discuss if anyone wants to share anything थोड़ा useful लगा. Okay. Is everyone here? All right. Now quickly before we start, I just want to say कि एक संकल्प लेते हैं आने वाले 6 दिन के लिए। Let's take a quick resolution. बस खाली ये 6 दिन ही हम अपने शरीर को पहले रखेंगे। अपने शरीर को पहले कैसे रखना है? अपने से जैसे ही आपको लग रहा है कि आपको वॉशरूम जाना है, सब छोड़ के इमीडिएटली वॉशरूम जाएंगे। जैसे लग रहा है कि भूख लग रही है, सब छोड़ के पहले खाएंगे। तो अभी शरीर को वो मान सम्मान देंगे खाली ये 6 दिन, राइट? उसके बाद फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले ये 6 दिन पे फोकस करते हैं। कर सकते हैं क्या? थम्स अप बताइए मुझे जो कर सकते हैं ये 6 दिन। ओके, तो शरीर को पहला प्रायोरिटी देंगे हम अपने से ऊपर, जस्ट फॉर दीज 6 days. Oh, nice, Smita ji. Yes, involve all the kids, everyone. All right. Okay, and along our journey, any आसन I do, I will definitely mention कि kids के लिए भी वो बहुत की जो आसन्स हैं उन्हें आप वो घर पे करा सकते हैं। So yes, let's make the resolution. ये 6 दिन बिल्कुल अपने शरीर को पहले रखेंगे, शरीर की जरूरतों को पहले रखेंगे। लेकिन कल ऐसा मत कहना कि मेरी शरीर की जरूरत 3 आइसक्रीम थी, वो बिल्कुल शरीर की जरूरत नहीं थी। आपको डिस्टिंग्विश करना है कि आपकी इच्छाओं और शरीर की जरूरतों के बीच। ऑल राइट, एंड दैट्स where we are. Anyone with any questions? Okay, anyone wants to share anything, or we will then meet for asan practice. We'll take a 2-minute break and meet for asan practice. All right. Okay, see you all in 2 minutes.
ओके, आ जाते हैं। ओके, मैंने देखा हमारे पास कुछ 5-6 मिनट हैं, तो आज आसन नहीं चालू करते हैं। आज मैं आपको एक सेक्शनल ब्रीदिंग कराती हूँ, राइट? कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाते हैं, सुखासन में। ओके, कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। ओके, सेक्शनल ब्रीदिंग करते हैं। पहले आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताती हूँ। सो हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, घुटनों पर, बैक स्ट्रेट, स्पाइन को ऊपर खींचेंगे और आंखें बंद रख के कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। मैं पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। तो जब हम सांस अंदर लेंगे, पेट बाहर, छाती को एक्सपैंड करेंगे और शोल्डर्स को एक्सपैंड करेंगे। सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर लेंगे, छाती रिलैक्स करेंगे, शोल्डर रिलैक्स करेंगे। पहले आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिएगा। कुछ 2-3 सांसें खाली पेट बाहर निकालेंगे, पेट अंदर करेंगे, पेट बाहर, पेट अंदर। फिर हम चेस्ट या थोरैसिक एक्सपेंशन करेंगे। सांस अंदर लेते, चेस्ट एक्सपैंडेड एंड चेस्ट रिलैक्स्ड, फिर शोल्डर और फिर साथ में करेंगे। ऑलराइट, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस कोई भी पॉइंट पे, प्लीज unmute yourself and ask. For now, let's do abdominal breathing. हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें बंद, ध्यान अपनी सांसों पर। सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस अंदर, पेट बाहर, सांस छोड़ेंगे, पेट अंदर। सांस अंदर, पेट को थोड़ा सा और बाहर खींचे और सांस छोड़ते हुए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पेट को अंदर खींचेंगे। ऐसे 2 से 3 सांसें लें। सांस अंदर, पेट बाहर, सांस छोड़ें, पेट अंदर। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। अभी थोरैसिक ब्रीदिंग करते हैं। अभी सिर्फ चेस्ट पे ध्यान देना है। ऑलराइट, सांस अंदर, चेस्ट एक्सपैंडेड, सांस छोड़ेंगे, चेस्ट रिलैक्स। सांस अंदर, चेस्ट को एक्सपैंड करें, सांस भरें, सांस छोड़ें, चेस्ट को रिलैक्स करें। चेस्ट पे ध्यान, सांस अंदर, चेस्ट एक्सपैंडेड, सांस छोड़ें, चेस्ट रिलैक्स। अभी अगली 2-3 सांसें शोल्डर पे ध्यान देंगे, सिर्फ शोल्डर पे। सांस अंदर, शोल्डर एक्सपैंडेड, सांस छोड़ें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। Shoulders expanded and relaxed. Shoulders expanded and relaxed. अभी अगली 2-3 सांसों में तीनों मर्ज करते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। सांस अंदर, पेट बाहर, छाती एक्सपैंडेड, शोल्डर्स एक्सपैंडेड। सांस छोड़ें, पेट अंदर, छाती, शोल्डर्स रिलैक्स। सांस अंदर, पेट बाहर, छाती एक्सपैंडेड, शोल्डर्स एक्सपैंडेड। सांस बाहर, पेट अंदर, छाती, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। Abdominal breathing, thoracic breathing, clavicular breathing. Relax abdomen, relax chest, relax shoulders. ध्यान पूरी तरह सांसों पर। ये योगिक ब्रेथ कंटिन्यू रखेंगे। मन कहीं भाग रहा हो, खींच के वापस सांस पर ले आए। Attention back to your breath. दो तीन सामान्य सांसें
Let's relax, keeping our eyes closed. Let's breathe normally for a few breaths. 2-3 सामान्य सांसें लेंगे। साथ मिलकर 3 टाइम ओम का उच्चारण करेंगे। To end the session, let's breathe in and out, 2-3 normal breaths. Together, let's breathe in for Om. Breathe in. Out. Breathe in. Breathe in. दो तीन सामान्य सांसें, दोनों हाथों को साथ में जोड़ लें। Let's express gratitude to our body, our friends and family. बच्चों का दिल से सबको धन्यवाद करें। शरीर को अपना साथ देने के लिए धन्यवाद करें। Palming करेंगे। Let's rub our palms and place them, cup them and place them on your eyes. Whenever ready and comfortable, you may open your eyes. Okay, thank you so much everyone for bearing with me today theory lecture में। कल से आसन practice रहेगा। 5 दिन अलग अलग आसन सीखेंगे, weight loss के आसन सीखेंगे और weight gain के आसन सीखेंगे, right? And anyone with any questions, कल same time, कल एकदम dot start कर लेंगे 4 बजे। कोई questions? Anyone wants to ask anything? All right. Okay, we'll see you all tomorrow. Thank you so much, everyone. Thank you, Marvi. It was a very informative and wonderful session. I hope all have enjoyed, especially the new people who were quite unknown to yoga. They have enjoyed the session. And one more thing I want to clear, we are not providing any certificate for this workshop. Please be informed, हम लोग इस workshop के लिए आपको कोई भी certificate नहीं देंगे, because it is completely free and it is as a service purpose. All right. और जिनको भी कोई डाउट है, I would request बने रहें, कल आके एक और बार देखें, practice experience करें, and then we'll move forward. Thank you. Okay. Thank you. Okay, I'll end the session. Thank you.